Good morning all. Welcome to your EVS class. So students, in last class we have completed with the chapter number 14, that is animals around us. And in today's class we are going to start with the new chapter, that is chapter number 15, our earth. So in this chapter we are going to study about the planet Earth. Okay, planet Earth is the only planet which has life on it. Okay, so we are going to discuss few facts related to planet Earth, and in this we are going to cover few topics like landforms of our Earth, water bodies and forests. Then we are going to discuss about natural things, what are natural things and what are man made things. ओके, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, the only planet which we can touch is our Earth. Earth, our home, is the third planet from the sun. So student, as you all must know that Earth is the only planet which has life. That means we all live on the Earth and it is our home. Okay, none other planet in our solar system has the life on it. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये जो सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम मतलब सोलार सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसके सेंटर में सन होता है और ये सन के अराउंड हमारे जो ये 8 प्लैनेट्स है सोलार सिस्टम के अंदर, वो 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. तो सबसे पहले सन के बाद सन जो है वो सेंटर में है, बीच में है. फिर सन से सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है? सबसे पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी. देन सेकेंड वन इज़ Venus, third one is Earth, then fourth one is Mars, fifth one is Jupiter, sixth one is Saturn, then seventh one is Uranus. Okay, and the eighth one is Neptune. तो ये 8 planets हैं, उनमें से अर्थ का नंबर कितना है? थर्ड. अर्थ comes at third place from the sun. Okay, so out of all these 8 planets, only the planet Earth has the life on it. मतलब सिर्फ अर्थ के ऊपर जो है लाइफ है, जीवन कौन से प्लैनेट पे है? जीवन सिर्फ हमारा जो ग्रह है अर्थ, उसी के ऊपर जीवन है. बाकी सारे प्लैनेट्स उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो सिर्फ रॉक्स है, कुछ गैसियस प्लैनेट है, उनके ऊपर सिर्फ गैस है. कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग नहीं है उन प्लैनेट्स के ऊपर. जो अर्थ है वही एक ऐसा प्लैनेट है, पूरे सूर्यमंडल बोलते हैं, सोलार सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्यमंडल. तो पूरे सूर्यमंडल में सिर्फ हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उसी के ऊपर क्या है? जीवन पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है. जैसे कि पेड़ है, एनिमल्स है अलग अलग तरह के, है ना. सो एंड ऑल अदर प्लैनेट्स अदर देन आवर प्लैनेट अर्थ, दे ऑल डोंट हैव एनी लाइफ ऑन देम. ओके, उनके ऊपर ऑक्सीजन ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती. बिकॉज एनी लिविंग थिंग ऑन द अर्थ नीड्स ऑक्सीजन एंड वाटर टू लिव. ओके, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पे लाइफ नहीं होगी. सो we'll discuss about it in more detail as we proceed with the chapter. Okay, Earth, our home, is the third planet from the sun. So as I explained you earlier, Earth is our home because we all live on the Earth. That is why we call Earth as our home, and it is the third planet from the sun. I have told you na, Earth comes at third place from the sun. The first planet from the sun is Mercury, then second is Venus, and third one is Earth. So before Earth there are 2 more planets. Okay, so पहला planet है Mercury, दूसरा है Venus, और तीसरे नंबर पे आता है planet Earth, that is our planet. It is the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of liquid water on its surface, and of course life. Okay, so I have told you na, the Earth is the only planet in the solar system which has life on it, which has atmosphere on it, and that atmosphere contains free oxygen.
and also we have water bodies like ocean, है ना. We have water on the earth, and all other planets like Mercury, Jupiter, Mars, Saturn, Neptune, they don't have all these things. Means all other planets except our planet earth, they don't have atmosphere on them, they don't have oceans of liquid water. Oceans of liquid water means जो ओशंस है उसमें वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है. बट आप अगर मार्स पे जाओगे, मार्स पे अभी हमने मंगलयान भेजा था ना, तो मंगलयान ने जो फ़ोटोज़ भेजी हैं हमें वहाँ से मार्स की, मार्स मतलब मंगल ग्रह, मंगल ग्रह. सो हमारे कंट्री ने, इंडिया ने भी मार्स के ऊपर एक सैटेलाइट भेजा था, तो उसका नाम था मंगलयान. तो मंगलयान ने फ़ोटोज़ भेजी हैं मार्स की, प्लैनेट मार्स की. तो वहाँ पे देखा गया है, वहाँ पे वाटर है, वाटर इज़ देयर ऑन मार्स, बट इट इज़ इन दी आइस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है वहाँ पे आइस, इसीलिए वहाँ पे क्या है, लाइफ नहीं है. पर हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो वाटर है, इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव द वाटर इन liquid form, because life sustains only when the water is in the liquid form. जीवन कहाँ पाया जाएगा, जब पानी लिक्विड फॉर्म में होगा. ठीक है, आइस वाले पानी में कोई भी, जैसे आइस वाली जगह है, जैसे अंटार्कटिका ले लो, साउथ पोल ले लो, नॉर्थ पोल ले लो, ऐसी जो जगह है बर्फीली जगह, वहाँ पे कोई लोग रहते क्या? डू यू फाइंड हैबिटेट्स ओवर देयर? नो. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी to have the water in the liquid form. And out of all these 8 planets, only the planet Earth has the oceans of liquid water. That is why Earth's atmosphere, Earth's weather is very very helpful for the sustainable life. इसी वजह से हमारा जो ये प्लैनेट अर्थ है, उसके ऊपर जो है जीवन पाया जाता है, और ये सपोर्ट करता है. अर्थ के ऊपर जो वेदर है, जो हवामान है, जो वातावरण है, वो लाइफ को सपोर्ट करता है. इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीवन के अलग अलग तरह के बोलते हैं ना हम लोग, प्रकार पाए जाते हैं. विभिन्न तरह के प्राणी, विभिन्न तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे अर्थ के ऊपर. पर बाकी सारे प्लैनेट्स देखोगे तो वो पूरे के पूरे खाली है, और वहाँ पे कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता. ओके, एंड next paragraph, the shape of the earth is like an orange. If you see over here, this is the satellite picture of our earth. ये जो है, ये क्या है, हमारी अर्थ की सैटेलाइट से खींची हुई पिक्चर है. सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक स्पेसशिप जैसा ही होता है, जो स्पेस में घूमता है, और वहाँ से एक क्या बोल सकते हैं आप, स्पेस क्राफ्ट के जैसे ही होता है. रॉकेट नहीं बोल सकते, स्पेस क्राफ्ट के जैसे होता है सैटेलाइट्स, जो हमारे अर्थ के आजू बाजू घूमता है, बट कहाँ पे? स्पेस में. ओके, स्पेस में घूमता है, जहाँ पे वातावरण नहीं होता है, हमारे जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है वहाँ पे. तो अर्थ के ऊपर स्पेस से खींची हुई ये तस्वीर है, सैटेलाइट ने खींची हुई. तो उससे ये जो पिक्चर है, इससे पता चल रहा है कि हमारी अर्थ जो है उसका शेप कैसा है. इसका शेप ऑरेंज के जैसा है, यानी राउंड शेप है. राउंड भी नहीं बोलेंगे, इस शेप को बोलते हैं स्फेरिकल शेप. क्या बोलेंगे इसको? स्फीयर लाइक शेप है. जैसे आप बॉल लोगे कोई, तो उसका शेप कैसा होता है ना, वैसे ही हमारी अर्थ सैटेलाइट से अगर देखेंगे तो ऐसी दिखती है, स्पेस से देखेंगे तो हमारी अर्थ ऐसी दिखती है. तो द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक एन ऑरेंज. इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. सो most of the part of the earth is covered by the land and water. जो हमारी लैंड है उसके 2 तरह के पार्ट्स या 2 तरह के हिस्से बनते हैं. एक पानी वाला हिस्सा, दूसरा ज़मीन वाला हिस्सा, जहाँ पे ज़मीन है, और दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पे पानी है. तो 2 तरह के हिस्से पाए जाते हैं, या 2 तरह के फॉर्म्स है अर्थ के ऊपर. एक है लैंड एंड दूसरा है वाटर. सो नेक्स्ट, रफली 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. मोस्ट ऑफ इट
in the oceans. So if you see, children, the picture of earth, the most part of the earth surface is covered by the water, and the water which is on the earth, it is mostly in the oceans. So हमारी जो ये अर्थ है उसका 71% हिस्सा किसके अंडर कवर है? इसका 71% हिस्सा पानी के अंडर कवर है. पानी है 70. अगर अर्थ का पूरा पोर्शन देखोगे तो उसके 71% हिस्से में पानी है और बाकी बचे हुए हिस्सा किसका है? ज़मीन वाला हिस्सा है. तो क्या ज़्यादा है हमारे प्लैनेट के ऊपर? हमारे प्लैनेट के ऊपर ज़मीन से ज़्यादा पानी पाया जाता है. क्या पाया जाता है? ज़मीन से ज़्यादा पानी वाला हिस्सा है. और पानी वाले हिस्से की क्या परसेंटेज है? पानी वाले हिस्से की परसेंटेज है 71%. ओके. And remaining 29% of our earth surface is the land. Okay. तो बचा हुआ जो 71% निकाल के जो जितना परसेंटेज बचता है उतने परसेंटेज में क्या है? उतने वाले हिस्से में क्या है? उतने वाले हिस्से में आता है लैंड वाला यानी ज़मीन वाला हिस्सा. ओके. और जो ये अर्थ है उसका मोस्ट ऑफ द जो पानी वाला हिस्सा है वो वाला पानी पूरा का पूरा जो पानी वाला हिस्सा है उसमें से बहुत सारा पानी वाला हिस्सा किस में जाता है? ओशंस में, यानी समुंदर वाला पानी है. ज़्यादातर हिस्सा समुंदर वाले पानी में चला जाता है, पानी वाला जो हिस्सा होता है. ओके. और बचा खुचा ही वाटर जो है इट इज़ ड्रिंकेबल वाटर एंड इट इज़ फ्रेश वाटर. बाकी का हिस्सा पूरा सॉल्टी वाटर यानी ओशन वाटर का है. ओके. Next, about a fifth of Earth's atmosphere is made up of oxygen, which is produced by the plants. ओके. तो और क्या सीखने को मिल रहा है हमें इस अर्थ के बारे में? और क्या पता चल रहा है कि हमारी जो ये प्लैनेट अर्थ है इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मीन्स इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ. ओके. हमारी जो ये अर्थ है उसके आजू बाजू जो एयर का लेयर है, गैसेस का लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. जैसे हमारी जो ये अर्थ है वहाँ पे हवा है. इस हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अलग अलग तरह के गैसेस है. हमें एयर में से सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हमें बाकी सारे गैसेस भी होते हैं इस एयर में. बट हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हेल्पफुल होता है. बट हमें बाकी गैसेस भी हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है जो हमें पता नहीं चलते. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर वेपर हो गया या वाटर स्टीम हो गया और नाइट्रोजन हो गया. ये सारे गैसेस मिलके क्या बनाते हैं? अर्थ के अराउंड एक लेयर बनाते हैं. अर्थ के आजू बाजू ये जो अर्थ दिखाई दे रही है उसके आजू बाजू एक लेयर बनाते हैं, डेंस लेयर बनाते हैं, यानी घना वाला एयर का लेयर बनाते हैं. उसमें ओजोन भी आता है. ओजोन के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने. ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन. ये जो ओजोन है ये सारे गैसेस होते हैं जो हमारे अर्थ के आजू बाजू एक लेयर बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. सो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है उसका 1/5 पोर्शन किससे बना हुआ है? उसका 1/5 पोर्शन ऑक्सीजन से बना है. ओके. 1/5 मतलब अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1/5 ऑफ 1. मतलब आप किसी भी चीज़ को 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 5 हिस्सों में 5 इक्वल पार्ट्स बनाओगे किसी भी चीज़ के, किसी भी शेप के. तो सपोज ये part है, this is the one whole part and if I make 5 equal parts out of it, 1 2 3 4 and 5, ये कितने parts बने इसके? 1 1 1 1. I have made the 5 equal parts. So out of all these 5 equal parts, दिस वन पार्ट विल बी दी 1/5 ऑफ होल पार्ट. ये पूरे का अगर एक ही हिस्सा लोगे ये, तो ये एक हिस्सा कितना बना? 1/5 ऑफ होल.
यानी पूरे का एक हिस्सा, ये पूरे जो 5 हिस्से थे उसमें से एक ही हिस्सा लोगे, 5 हिस्सों में से अगर आप एक हिस्सा लोगे दैट विल बी नोन एज 1/5 ऑफ होल। ये पूरे पार्ट में से एक हिस्सा बनेगा 1/5 ऑफ होल। सो अगर पूरे एटमॉस्फेयर को हम एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कितना हिस्सा बनता है, फ्रॉम दैट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके, ऑक्सीजन सिर्फ 1/5 है एटमॉस्फेयर में। एंड दिस ऑक्सीजन, यू नो ना हु प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन? प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन बिकॉज प्लांट्स inhale carbon dioxide and they exhale oxygen. So on earth oxygen is been produced by the plants. plants क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, कौन से फैक्ट्स सीखे आज अर्थ के बारे में? हमने अर्थ के बारे में ये फैक्ट्स सीखे कि इन आवर सोलर सिस्टम अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। ओके, पहला फैक्ट है अर्थ के बारे में, क्या है? देयर इज लाइफ ऑन अर्थ। दूसरा फैक्ट क्या है? अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। ओके, तीसरा फैक्ट क्या सीखा इसमें? तीसरा फैक्ट हमने ये सीखा कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या है? जीवन है। मतलब अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ द लाइफ। that we have already covered. The third fact about the earth is earth has atmosphere, oceans of liquid water, and life. Okay, then fourth fact was shape of earth. What is the shape of earth? Earth is spherical in shape. स्फेरिकल मतलब राउंड शेप, जैसे बॉल की शेप होती है वैसी शेप की है। ओके, ऑल्सो अर्थ इज मेड अप ऑफ land and water. Okay, and then the sixth fact about earth, nearly 71% of earth's surface is covered by water, and most of water is in the oceans. Okay, most of the water is in the oceans. और seventh fact क्या है? About 1/5 of Earth's atmosphere is made up of oxygen. Okay, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 1/5 of that atmosphere has the oxygen. Okay, now we will move on to the next topic, that is natural things. तो ये तो हमने पढ़ लिए सारे क्या क्या फैक्ट्स है अर्थ के बारे में, वो हमने सारे जान लिए। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे अर्थ से रिलेटेड क्या क्या सारे फैक्ट्स है वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट, नेचुरल थिंग्स। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, लैंड एंड वाटर. सो एज आई मैंशनड
about it earlier, that surface of earth is divided into two parts, land and water, and we know that 71% of earth's surface is covered by the water. जो हमारी अर्थ है उसका नियरली अबाउट 71% जो हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, वो पानी से कवर्ड है, और बचा हुआ 29% हिस्से में क्या है, ज़मीन है. So a model of earth is called a globe. So the model of earth is called globe. जो हमारी अर्थ है उसका जो हम नमूना बनाते हैं ऐसे वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ग्लोब. ओके, आपने ये देखा होगा लैब में या किसी क्लासरूम में रखा होगा ग्लोब, है ना, या आपके घर पर भी होगा अर्थ ग्लोब. ठीक है. Next, hills, valleys, mountains, plateaus and plains are the different land forms. Okay, now in this we are going to discuss about the different land forms. Land forms मतलब किस किस तरह की ज़मीन पाई जाती है अर्थ के ऊपर, किस किस तरह के land forms है. तो हमारे अर्थ के ऊपर there are different types of land forms which are like hills, valleys, mountains, plateaus, plains. Okay, so hills, you all must have seen the hills, यानी पहाड़, है ना. माउंटेन्स मतलब पहाड़, हिल्स मतलब भी छोटे वाले पहाड़, वैलीज मतलब खाई वाली जगह, जो दो पहाड़ होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलीज. See over here, these are the mountains. Okay, these two are the mountains and the space between two mountains is known as valley. क्या बोलते हैं उसको, valley. So we have hills, mountains, valleys. Okay, plateaus. So plateaus look like this. They are little bit elevated from the surface but their top is flat. Plateau, जैसे माउंटेन का टॉप इज पॉइंटेड, है ना, माउंटेन का टॉप इज pointed but plateaus look like this. They are little bit elevated from the surface. ये जो है सरफेस वहाँ से थोड़ा सा एलिवेशन पे होते हैं, यानी थोड़े से हाइट पर होते हैं, पर उनका ऊपरी जो हिस्सा होता है अनलाइक माउंटेन्स इट इज़ फ्लैट. टॉप जो होता है प्लेट्यूज का इट इज़ फ्लैट. ओके, सो दे आर नोन एज प्लेट्यूज. एंड द अदर landform type is plains. Plains means they don't have elevation, they are plain, मतलब इनको हाइट नहीं होती है, वो बिल्कुल प्लेन होते. इफ़ यू सी यानी उनको बोलते हैं मैदान वाली जगह. क्या बोलते हैं, मैदान वाली जगह. इन इंडिया वी हैव पंजाब विच इज़ नोन एज प्लेन्स. फिर जो समुंदर किनारे जाते हो, जो बीचेस होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, एक जैसे होते, ज़्यादा हाइट पर नहीं होते हैं. तो ऐसी जगह को क्या बोलेंगे, प्लेन्स. खुली जगह जहाँ पर कोई भी एलिवेशन नहीं बना है और वो इधर पूरे एंड तक जहाँ पर भी देखो वहाँ पर पूरी जगह पर वो प्लेन सतह बनाई हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन्स. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स. द टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स आर हिल्स, valleys, mountains, plateaus and plains. Okay, ये है. Now next, water bodies. We will discuss about the water bodies now. The different water bodies are lakes, ponds, rivers, seas and oceans. So अर्थ के ऊपर जो अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ पाई जाती है जिनमें पानी मिलता है, जिनसे हमें पानी का, दे आर नोन एज द सोर्सेज ऑफ वाटर एज वेल. वाटर बॉडीज़ मतलब जिनमें पानी है, दे कंटेन वाटर इन देम. That is why they are known as water bodies. They are the sources of the water. So what are the sources of the water which are found on the earth? They are lakes, ponds, rivers, seas and oceans. So we can get water from lakes, ponds, rivers, seas and oceans. Lakes मतलब तालाब. आपने तालाब तो देखे ही होंगे, तो तालाब हो गया. नेक्स्ट पॉन्ड्स, छोटा वाला तालाब जो होता है ना, छोटा वाला तालाब, उसको भी
तालाब भी बोलते हैं, छोटे साइज़ में होता है, लेक जितना बड़ा नहीं होता है. रिवर्स मतलब नदियाँ. ओके, they are the sources of fresh water. Lakes, ponds and rivers, they are the sources of fresh water. Means water from lakes and ponds are the drinkable water. Means we can drink that water. इनमें से जो पानी मिलता है, lakes, ponds और rivers, इनमें से जो पानी आता है वो हम पी सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं. And the remaining water bodies are seas and ocean. seas मतलब समुंदर, और ये जो होते हैं ओशन, उनको हम बोल सकते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, उनको बोलते हैं ओशंस. समुंदर जैसे ही बट बहुत ही बड़े होते हैं वो. ओशंस जो होते हैं 2-3 समुंदर मिला के एक ओशन बनता है. ओके, हिंदी में ओशन को क्या बोलेंगे, ठीक है. आई विल लेट यू नो व्हाट वी कॉल टू द ओशन इन हिंदी. ओके, तो समुंदर छोटा वाला समुंदर और ओशन जो होता है वो बड़ा वाला समुंदर होता है. The landforms and the water bodies are called natural things. So we discussed about the landforms and water bodies, and they are also known as the natural things. They are also known as the natural things. जैसे माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, दे ऑल आर नेचुरल थिंग्स. दे आर द नेचर्स गिफ्ट टू अस. वी ह्यूमन बींग्स कैनॉट क्रिएट ऑल दिस थिंग्स. जैसे आपने देख लिया, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, ये सारी क्या है, हमें हमारी जो ये मदर अर्थ है, हमारी जो ये पृथ्वी माता है, उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर दी है. ये हमारे निसर्ग, जो हमारा ये नेचर है, निसर्ग है, उसका क्या है, ये एक तोहफ़ा है हमें मानव जाति को मिला हुआ. और ये सारी चीज़ें जो है हम हमारे से क्रिएट नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सोच विचार के परे हैं. बनाने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते. तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ें हमें पहले से गिफ्ट में मिली है नेचर से, जिन चीज़ों को हमने नहीं बनाया है, हम मनुष्य ने जिन चीज़ों को बनाया नहीं है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स. द थिंग्स which are gifted by the nature to us, and the things which the human beings cannot create, those things are known as natural things. Okay, so we have covered till this. Then in next class we are going to cover the remaining topics from the chapter, that is our earth. तो आपको पता चल गया what we have covered in today's topic. We have what we have covered in today's class. We have covered few facts related to the earth. Then in that we have covered the different types of landforms and different types of water bodies, and also we have covered what is meant by natural things. So I hope you all must have understood what is meant by natural things. Natural things means those things which are gifted to us by the mother nature or by the nature, and the things which human beings cannot create. Okay, those things are known as natural things. And what are the examples of the natural things? The examples of the natural things are hills, mountains, valleys, okay, then lakes, rivers, oceans, etc, etc. Atmosphere, all these are known as the natural thing, क्योंकि ये पहले से ही है जो नेचर में अवेलेबल चीज़ें हैं. इनमें से कोई भी चीज़ को हमने बनाया नहीं है, ये हमें नेचर से ही पहले से ही गिफ्ट में मिली हुई चीज़ें हैं. ओके, so I hope you have understood all the topics which we have covered in today's class, and in next class we will discuss the remaining topics from the chapter number 15, our earth. Till then, thank you. Have a nice day.